اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ غیرت جگانا چاہتا ہوں، شرم دلانا چاہتا ہوں، اور جس بھائی کے اندر تھوڑی سی بھی شرم اور حیا اگر ہے، میں تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جس بھی بھائی کے اندر تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہے وہ اس میسج کو شیئر کرے گا تاکہ دیگر ملازمین تک بھی پہنچ سکے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے ملازمین کے لیے ایک جدوجہد کی، جس کی وجہ سے آپ کی تنخواہوں کے اندر تفریق کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ جتنے بھی ساتھیوں کو یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا ہے یہ محروم محکموں میں سے تھے، کوئی بھی ساتھی کسی قسم کی ڈیمانڈ ابھی اس کے اندر نہیں کرے گا۔ اس میسج کو شیئر کریں کہ آپ وہ محروم ملازمین تھے جو آپ کو ریلیف لے کے دیا تمام طاقتور اداروں سے ہٹ کے، اور ابھی دوبارہ سے بجٹ کے اندر اگر 40% ہم نے 25% ایک دفعہ، 15% ایک دفعہ بجٹ کے اندر ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز آپ کی ضم کروائے۔ مایوس کن تعداد تھی آپ کی شرکت کے حوالے سے، خواہ وفاق کے ساتھی ہوں یا صوبوں کے ساتھی ہوں۔ قائدین نے اپنی جان سے بڑھ کے زور لگایا، جتنے بھی قائدین تھے، مگر ملازمین کی طرف سے شرکت جو ہے وہ بہت مایوس کن تھی، اور اپنی عزت بچانے کے حوالے سے کہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، ہمیں وفاقی سیکٹریٹ کے گیٹوں کو تالے لگانے پڑے، اگریسو موڈ میں جانا پڑا۔ اگر تعداد ہمارے ساتھیوں کی زیادہ ہوتی تو ہمیں کوئی تالے وغیرہ یا کچھ نہ کرنا پڑتا، آٹومیٹکلی روڈ بھی بند ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا۔ تقریباً 5 لاکھ وفاق کا ملازم ہے، 7,21,000 جو ہے پنجاب کا ملازم ہے، اور 6.5 لاکھ ہمارا خیبر پختونخوا کا ملازم ہے، جو نزدیک کی بات ہے، جس کی باؤنڈری وفاق کو ٹچ کر رہی ہے۔ پھر ہمارے سندھ کے ساتھی ہیں، بلوچستان کے ساتھی ہیں، آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے، بٹ جو نزدیک کے ساتھی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ قائدین نے پوری جان لڑائی، پوری کمپین کی۔ یہ تقریباً 18 لاکھ ملازمین بنتے ہیں تمام وفاقی و صوبائی جو ڈپرائیوڈ ہیں، اور اس کا صرف 10% کہ 90 ملازم دفاتر میں رہیں، صرف اس میں سے 10% اگر ادھر آ جاتے تو وہ 18,000 کی تعداد بنتی، اور 18,000 کی تعداد کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی مطالبہ اگر لے کے آئیں گے تو وہ ہر صورت کے اندر پورا ہوگا۔ دکھ اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ اپنی نوکری قربان کر کے، اپنے گھر والوں کا ٹائم ضائع کر کے، میرے سمیت دیگر تمام قائدین، اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو اتنے سالوں سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، بے ضمیر، بے حس اور سست ملازمین کی خاطر۔ ایک میسج ہم نے سرکولیٹ کیا، تمام سوشل میڈیا تک آپ تک پہنچا، اس میسج کو شیئر کریں کہ کالی پٹیاں باندھ کے آپ پروٹیسٹ کریں گے، اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ملازمین کتنے سنجیدہ ہیں، یونین کے دیگر ساتھی کتنے سنجیدہ ہیں۔ مگر میسج آتا ہے، میں کسی دفتر میں بھی جاتا ہوں، باجوہ صاحب وہ کالی پٹیاں ہمارے تک پہنچی نہیں، اب پٹیاں بھی آپ لوگوں کو پہنچائی جائیں گی۔ بے حسی، بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ کسی ساتھی کو اپ گریڈیشن چاہیے، کوئی ٹیکنیکل ہے، کوئی نان ٹیکنیکل ہے، کوئی کلیریکل ہے، کوئی کلاس 4 ہے، اور سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ تماشا سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے کلیریکل بھائیوں نے لگایا ہو۔ ہمارے ایک بھائی نے میرے سے ناراضگی مول لے کے پوری کمپین کر کے کلیریکل کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ ساتھیوں کو اکٹھا کیا، 20 ساتھی نہیں تھے۔ یہ بات کرتے ہیں میرے کلرک بھائی جو ہیں کہ صرف ان کا ایجنڈا ہونا چاہیے، کلرک استعمال ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام صوبائی ساتھی یہاں پہ موجود تھے،
रेलवे के टेक्निकल मुलाजमीन, वापडा के टेक्निकल मुलाजमीन, पोस्ट ऑफिस के टेक्निकल मुलाजमीन, नेशनल सेविंग के टेक्निकल मुलाजमीन, टीचर्स कम्युनिटी यहां पे मौजूद थी। सबका इज्तिमाई इशू था और उसके अंदर क्लैरिकल का और दीगर साथियों का इशू हमने रखा और क्लैरिकल का इशू हाईलाइट होकर सामने आ गया सूबों और इन तमाम नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से। बेशक क्लैरिकल साथी भी वहां पे मौजूद थे। सबसे ज्यादा तादाद अगर हम सेक्रेटरीट की या दीगर साथी को तो क्लास 4 के साथी हैं वहां पे मौजूद। और अभी भी जो लेटर सर्कुलेट किए जा रहे हैं उन लोगों की वजह से जो अमली तौर पे मैदान में नहीं आते, उसके अंदर भी क्लास 4 को जो है माइनस कर दिया गया है या टेक्निकल की बात नहीं की जा रही। रिलीफ किसी ने लेना है तो मैं वाजे करता चलूं कि नेक्स्ट प्रोटेस्ट की कॉल उसी सूरत में दी जाएगी। 12 तारीख इसीलिए रखी थी कि मुलाजमीन की संजीदगी को देखा जा सके। विद इन सेक्रेटेरिएट जो है वहां पे भी डिस्पैरिटी कायम कर दी गई है 150%। 17 से ऊपर को एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया गया। बहेस पाकिस्तानी मुसलमान कौम कि पेट्रोल की जब कीमत भी बढ़ती है तो पूरा पाकिस्तान बाहर होता है उसके ऊपर, मगर वो एहतजाज में इकट्ठा होकर पार्लियामेंट जब वहां पे नहीं आता, पूरा पाकिस्तान बाहर होता है, पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़ा होता है कि 12 बजे से पहले मैं पेट्रोल डलवा लूं। आप तमाम की आईडीज के ऊपर कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, कोई जमात इस्लामी को कर रहा है, कोई किसी पार्टी को कर रहा है, कोई किसी पार्टी को कर रहा है। खुदारा इस चीज में से निकले। अगर किसी ने कोई रिलीफ लेना है तो सियासी पार्टियों ने प्लेट में रख के आपको नहीं दिया। यह भी जो रिलीफ है आपने जोरे बाजू वहां पे बाहर निकल के लिया है। ख्वाह इमरान खान साहब की हुकूमत में था, हमने आंसू गैस शेलिंग गिरफ्तारियां वहां पे हुई हमारी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में है तो जनाब शहबाज शरीफ साहब और तमाम वुज़रा को यह मैं कहना चाहता हूं कि मुसलसल हम एहतजाज में थे। पार्लियामेंट हमने बंद किया हुआ था। बजट तकरीर के अंदर 10% लिखा हुआ था, यानी कि आप नहीं देना चाहते थे। हमारे एहतजाज की वजह से 15% हुआ। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आ चुकी। मुलाजमीन अभी भी सुस्ती दिखाएंगे, कायदीन अभी भी सुस्ती दिखाएंगे। कायदीन सुस्ती क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मुलाजमीन कायदीन का बाजू नहीं बनते, उनके ऊपर बिला वजह की तनकीद करते हैं। कायदीन का काम जिद्दोजहद करना है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। जो भी एक्टिव साथी हैं 1 इंच का रिबन लें। 70-80 रुपए का वो रिबन आएगा जिसके अंदर से 25 पट्टियां निकलेंगी आपकी। 2.5, 3 या 4 रुपए का एक बंदे की पट्टी बनेगी। अगर दफ्तर के अंदर 100 साथी हैं तो 400 रुपए के अंदर वो पट्टियां क्लियर हो जाएंगी। 5000 आदमी के लिए मैं 13,000 की बैंड्स लेके आया हूं, मैंने प्रोवाइड किए। बट वो 5000 हैं। आप जिधर जिधर हैं अपने दफातर के अंदर काली पट्टियां बांधें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए, पता लगे कि मुलाजिम संजीदा है। मुलाजिम आएगा, कायदीन को भी पता लगे कि भाई 5 लाख में से 50,000 मुलाजिम ने पट्टी बांध ली है। और चलो ये 50,000 तो दफातर में पट्टी बांध के बैठा है, उसमें से 5,000 तो बाहर निकलेगा। बजट के अंदर भी आखिरी दिन हमारा 1500 या 1500 बंदा मौजूद था। मसाजिद से घसीट के गेट बंद करके साथियों को लाना पड़ा। अगर इन चीजों के ऊपर मुलाजमीन उम्मीद रखेंगे तो रिलीफ मिलेगा। आपकी गलतफहमी है, इस मैसेज को शेयर करें। आपकी आईडी के ऊपर मौजूद होना चाहिए। हमें तो शेयर करते हुए शर्म आती है कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में से कोई साथी ये देखेगा। रिलीफ इस तरह से नहीं मिलता। और खास तौर पे जो क्लर्क बरादरी है, मैं वाज़ेह करता चलूं कि अपनी एक पाव कलेजी के पीछे आप मुलाजमीन के इत्तेहाद की गाय को ज़िबा नहीं कर सकते। अपग्रेडेशन एजेंडे में थी, है और इंशाल्लाह ताला रहेगी जब तक वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो जाता। 3 दफा यह समरी वजीर आजम तक पहुंची।
मुसलसल उसके ऊपर नजर थी और मैं वाज़े तौर पे बताता रहा कि छुपाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। और एक दफा फिर से जब हमने प्रोटेस्ट के ऊपर जाना है तो ये एजेंडे पे है। अगर इस पे कंप्रोमाइज होता, मुकमुका होता, तो अगला जूते उठा के हुकूमत खड़ी हो जाती कि तुमने तो कमिटमेंट की थी, दोबारा से इसको किस लिए रखा है। तो तमाम साथी तसल्ली रखें, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक जो एग्जेक्टिव अलाउंस 150% दिया गया है, नीचे वाले और तमाम, मैं वाजे करता चलूं, तमाम एक्स कैडर के 17 से ऊपर अफसरान, आपके लिए भी ये मैसेज है। इफ यू वांट द रिलीफ, आपको अमली तौर पे ग्रेड 1 से 16 के जो साथी एहतजाज करते हैं उनके शाना बशाना आना पड़ेगा। 150% अगर तनख्वाहों में तफरीक आपने खत्म करनी है, कतन ऐसा नहीं होगा कि अफसरान बैठे रहें और दीगर साथी बाहर निकले। तमाम एक्स कैडर के साथियों के लिए, टीचर्स के लिए मेरा यह मैसेज है। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहाक मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है कि आप तैयारी रखें। तमाम सुबाई मुलाजमीन के लिए भी मेरा यह मैसेज है कि अपनी सुबाई की आदत के शाना बशाना हो। मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में हूं, मगर आपके नॉन रिस्पॉन्स की वजह से वो अभी तक एक्टिव नहीं हो पाए। सुबाई कायदीन भी शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, वफाकी भी शर्मिंदगी का शिकार होते हैं कि जब एक लीडर आता है उसके पीछे साथी ना निकले। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लीडर को मजबूत करें। जब वो आए तो उसे पता हो कि उसके पीछे उसके कायदीन की तादाद है, उसके पीछे मुलाजमीन की तादाद है, तभी वो कोई लीडर आपको जो है रिलीफ लेके दे सकेगा। इसकी अमली मिसाल 32,000 एडहाक असातिज़ा को अभी रेगुलर करवा के गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, यंग टीचर्स। नियत करेंगे तो तभी होगा। और माजरत के साथ बहुत दफा मेरा दिल किया है कि मैं इसको छोड़ दूं। 30 से 40 हजार तो पेट्रोल का खर्चा है मेरा महीने का। बार बार हम फंडिंग के लिए भी मैं नहीं बोल सकता, जाहिर बात है, अच्छा नहीं लगता। तैयारी रखें, खुदारा तैयारी रखें इस मैसेज को। और तमाम साथी पट्टियां अरेंज करके 12 तारीख तक नजर आए कि मुलाजिम तैयार है, तो तभी हम कोई अगला लाए अमल दे सकेंगे। और कुछ खास लोगों को मेरा यह मैसेज है कि ये जो ओहदों की तकसीम आपने डाली हुई है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का नाम इस्तेमाल करके, अमली तौर पे क्या किया है। मैं खास तौर पे सूबों के हवाले से बात कर रहा हूं। मैं बेशरम लोगों का नाम नहीं लेना चाहता कि जिनसे आपने सदारत या कुछ लिया है, तकसीम डाल रहे हैं, अमली तौर पे किया क्या है। मुलाजमीन मुत्तहिद रहें, गंदे अंडों पे बिल्कुल नजर है और वक्त आने पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हकूक का तहफ्फुज कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। दुआओं में याद रखिएगा, इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।